Hello students, welcome to Ambition classes. Today we are going to learn chemistry chapter number 1 of class 10 chemical reaction. So let's begin. गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर है ये 1, क्लास है 10th और आज हम स्टार्ट करेंगे ये न्यू चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, let us consider the following situations of our daily life. What happened when milk is left at room temperature during summers? Or when an iron article is exposed to humid atmosphere? Why grapes get fermented? What happened when food is cooked? How food is digested in our body and how we respire? If we think about all these situations, there must be some chemical change. There must be some chemical reaction in these situations. So if we talk about the milk left at room temperature during the summer, the result is it will get churned. जो दूध है वो फट जाता है अगर हम उसे गर्मियों के दिनों में रूम टेम्परेचर पर खुला छोड़ दें. Like an iron article is exposed to humid atmosphere, it will get corrode. उसमें जंग लग जाएगी, है ना? Similarly, grapes get fermented. जो अंगूर हैं, they will get fermented. खट्टे हो जाते हैं. The sugar is converted into alcohol. It is the process of fermentation for which yeast is responsible. When food is cooked, the ingredients will change completely. जो खाने बनाते वक्त हम जो ingredients लेते हैं, उस समय उनका जो initial structure, initial जो उनका look होता है, वो completely क्या हो जाता है? It will change after the chemical reaction or after the food is completely cooked. Similarly, when we digest food in our body, it will digest it into different components like carbohydrate, like protein, like fat, like minerals. So the digested food is splitted into different components of food in our body. And similarly, when we respire, what happened when we respire? We take oxygen and we exhale carbon dioxide. So in the process of respiration, we also think that there must be some chemical reaction which takes place. So basically, what is chemical reaction? The chemical change, wherever or whenever the chemical change occurs, we can say that chemical reaction takes place. But how we notice or how we identify that some chemical reaction will occur or some chemical reaction will take place? The nature and identity of the initial substance have somewhat changed. In the beginning of the chemical reaction, the nature and identity of the initial substance is different, and at the end of the reaction, the nature and identity of the final product is completely different. So when the chemical reaction occurs, the identity and the nature of the initial substance completely change. So we will understand this chemical reaction with the help of this example, which is given in your book. Give me 1 minute, please. Yes. What happened if we burn the magnesium ribbon in air? What happened if we burn magnesium ribbon in air? What happened? The magnesium, which is a metal, it react with the oxygen. In air, oxygen is present. So the magnesium will react with the oxygen and it burns and changes into a white powder of magnesium oxide. So we can say that there is a chemical reaction between the magnesium and oxygen in the air. Let us take another example. Yes, in this conical flask, we first take some zinc granules and then we add
some dilute sulfuric acid. What happened to this reaction? The dilute sulfuric acid, H2SO4, if it is dissociated, it gives H plus and SO4 negative ion. So zinc will react with the SO4 negative ion because zinc is cation. Zinc is Zn+2. It is the simple ion. So zinc will react with the sulfate ion and it forms ZnSO4, that is the zinc sulfate. Whereas the H plus is evolved in the form of H2 gas. जो H है, जो हाइड्रोजन था सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, तो जो सल्फेट था वो तो जिंक के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है एंड इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट, जबकि जो हाइड्रोजन था इट विल evolved from the reaction as hydrogen gas. So in this reaction there are some changes. What are they? What are the changes? There is change in the state, there is change in color, there is evolution of gas, and there is some change in the temperature of the reaction. तो जहां कहीं भी chemical reaction होगा there must be some changes. कहाँ कहाँ चेंज हो सकते हैं? इन द स्टेट ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है। जिस जिंक को हमने लिया है वो कैसा है, अभी आपके सॉलिड स्टेट में है, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन इट विल डिसॉल्व इन sulfuric acid and it will form zinc sulfate, which is completely liquid. There is change in color because there is dissociation of ion in the solution, so ions will produce their color in the solution. अगर कॉपर की बात करें, जो कॉपर के सॉल्ट होते हैं उन्हें हम इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? बिकॉज इन सोल्यूशन दे विल गिव ब्लू कलर। तो जहां कहीं भी ब्लू कलर का सोल्यूशन आपको मिलेगा आप इजिली कह सकते हो कि वो क्या है, आपका कॉपर का सोल्यूशन है। देयर इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। अभी हमने देखा इस रिएक्शन में कि ये जो जिंक सल्फर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन था, इसमें ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है ये क्या है, एक तरीके का बाय प्रोडक्ट है। साथ ही साथ देयर इज सम चेंज इन द टेम्परेचर। क्यों है टेम्परेचर में चेंज? उसका रीजन है कि दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर जब दो अलग अलग कंपाउंड्स जो हैं जब ये एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं तो इनके रिएक्ट करने से रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो रही है, निकल रही है। इसलिए जब आप इस कोनिकल फ्लास्क को छूकर देखोगे तो आफ्टर द रिएक्शन ये कैसा हो जाएगा, गर्म। मींस there must be some heat which evolved during the reaction. तो रिएक्शन के दौरान कुछ हीट भी जरूर क्या हुई है, इवॉल्व हुई है, निकली है। Now we will come on our topic, that is the chemical equation. अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसकी केमिकल इक्वेशन भी हमको लिखनी आनी चाहिए। तो ये केमिकल इक्वेशंस एक्चुअली क्या हैं? तो देखिए जो केमिकल इक्वेशंस हैं वो क्या हैं, दे आर द सिंपलेस्ट वे टू प्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस जो हैं ये दो तरीके से लिखी जाती हैं। देयर आर टू वेज टू राइट द केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट इज द वर्ड इक्वेशन and second is the chemical equation. Word equation means we only use words like magnesium, like oxygen, like magnesium oxide. अभी हमने जो एक्टिविटी की थी उसमें हमने देखा था when magnesium is burned in presence of oxygen it will form magnesium oxide which is a white color powder. So अगर हम चाहते तो यहाँ पर magnesium लिखते तो हम यहाँ पर Mg यूज कर लेते which is the symbol for magnesium. ऑक्सीजन के लिए हम O2 यूज कर सकते थे एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए हम MgO यूज कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। वी ओनली यूज वर्ड्स टू राइट वर्ड इक्वेशन, है ना। तो देखिए व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न विथ ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हमें इस रिएक्शन के लिए वर्ड इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, प्लस मीन्स they are the two reactants, है ना, they are the two reactants of the reaction.
हम लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स लिखते हैं, एंड विद द प्लस साइन बिटवीन देम, कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं. बट ऑन द अदर हैंड, दैट इज द राइट हैंड साइड, वी राइट द प्रोडक्ट विद द प्लस साइन बिटवीन देम. तो राइट हैंड साइड पर हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स, जबकि हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं रिएक्टेंट्स. तो रिएक्टेंट्स को हमें लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना और उनके बीच में प्लस का साइन यूज करना है. ऐसे ही इस रिएक्शन में देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट विच इज फॉर्म, दैट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड. लेकिन अगर कोई और रिएक्शन होगा और उसमें 2 और मोर प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे तो उनके बीच में हम क्या लगा देंगे, प्लस साइन. And this arrow, what it indicates? It indicates the direction of the reaction in which the reaction proceeds. So this arrow points towards magnesium oxide. It means the tail of the arrow indicates that magnesium and oxygen are the reactants, and head indicates that these are the products which will form after the reaction takes place. Now the second way to write down the chemical equation or to present the chemical reaction is to write down the chemical equation. अब किसी भी chemical reaction को लिखने का जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि हम उसको chemical equations के थ्रू present करें, है ना. Yes. But जब हम chemically लिखते हैं, so we use formula instead of words, we use formula. जो भी एलिमेंट्स हैं जो कि रिएक्ट कर रहे हैं उनके सिंबल्स को, उनके फॉर्मूले को हम लिखेंगे इन द केमिकल इक्वेशन. तो देखिए जहां पर हमने अभी ऊपर लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, सेम रिएक्शन को केमिकल हम कैसे लिख रहे हैं, वी यूज Mg फॉर मैग्नीशियम, वी यूज O2 फॉर ऑक्सीजन एंड MgO फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड. बट जब हम केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं तो अब आप देखिए, देयर इज वन मैग्नीशियम इन द रिएक्टेंट बट देयर आर 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स. ठीक, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट इज MgO, मींस देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एज रिएक्टेंट्स बट एज प्रोडक्ट देयर इज ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. इसका मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है, इसलिए अब हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है. सो द सेकेंड स्टेप इज द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन. ठीक, बैलेंसिंग जो है वो क्यों जरूरी है, बिकॉज जो टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स है जो कि रिएक्ट कर रहा है एज रिएक्टेंट इन द केमिकल इक्वेशन, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट विल बी सेम. क्योंकि जितना भी केमिकल इक्वेशन में या केमिकल रिएक्शन में टोटल मास रिएक्ट करेगा, सेम मास हमें किस फॉर्म में मिलना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स. सो दिस इज द मास ऑफ कंजर्वेशन, है ना. दिस इज द लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, कि जो मास रिएक्टेंट्स का रिएक्ट करेगा वही मास हमें कहाँ मिलेगा, प्रोडक्ट में. कोई भी एलिमिनेशन नहीं होगा. ठीक है, देयर इज नो एलिमिनेशन और देयर इज नो बाय प्रोडक्ट. तो देखिए अभी जो सेकेंड एक्टिविटी हमने की थी कि जिंक विल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन इज इवॉल्व. तो ये जो रिएक्शन था ये क्या था, वर्ड इक्वेशन थी. लेकिन अगर अब इसके लिए हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो क्या है, जिंक प्लस H2SO4 गिव जिंक सल्फेट प्लस H2, है ना. अब हमें क्या करना है, कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो देखिए फॉर दैट फर्स्ट वी ड्रॉ अ टेबल लाइक दिस. इस तरीके का एक टेबल हम बना लेंगे जिसमें हम सबसे पहले एलिमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे ऑफ रिएक्टेंट्स. हमने अभी बात की कि रिएक्टेंट्स को हमेशा हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो, जबकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम कहाँ बताते हैं, ऑन द राइट हैंड साइड. तो देखिए इस रिएक्शन में सबसे पहले आपको ये पता होने चाहिए हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, कितने एलिमेंट्स हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो फर्स्ट इज द जिंक, तो हमने सबसे पहले क्या लिख लिया, जिंक. सेकेंड इज हाइड्रोजन, तो हमने हाइड्रोजन लिखा. थर्ड इज सल्फर, तो हमने सल्फर लिखा. एंड फोर्थ वन इज ऑक्सीजन, तो हमने ऑक्सीजन लिख लिया. इसके अलावा और कोई भी आपको यहाँ पे एलिमेंट देखने नहीं मिलेगा. अगर आपको चेक करना है तो आप प्रोडक्ट जो बने हैं वहां भी चेक कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ भी जिंक है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है. नाउ काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स. सबसे पहले हम
रिएक्टेंट्स के एटम्स को काउंट करेंगे वन बाय वन। सो हाउ मेनी एटम्स ऑफ जिंक आर देयर एज अ रिएक्टेंट, कितने हैं, ओनली वन, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, वन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, सो इन H2SO4 देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हमने हाइड्रोजन के सामने लिख दिया 2। Similarly, for sulfur, there is only one atom, and oxygen there are 4 atoms. अब आपको क्या करना है, now count the number of atoms of the product. अब आप product के जो atoms हैं उनको count करेंगे। तो देखिए जो जिंक है उसके एटम को हमने काउंट किया, there is one zinc as product, as a product there is one sulfur, तो वो हमने 1 लिख दिया। ऑक्सीजन आर 4, हमने 4 लिखे हैं, एंड हाइड्रोजन आर 2, है ना। तो देखिए when both the side the atoms are equal or the number of atoms are equal on both the side, देखिए there is one zinc as reactant, there is one zinc as product, there is 2 hydrogen, there is 2 hydrogen as product, there is one sulfur as reactant, there is one sulfur as product, as well as there is one there are 4 oxygens as a reactant and there are 4 oxygen as product. तो देखिए when the number of atoms of reactants and the number of atoms of products are same, तो हम कह सकते हैं कि this reaction is balanced reaction. लेकिन इस रिएक्शन को अगर अब हम देखें, FeH2O, Fe3O4H2, when iron reacts with water it forms ferric oxide with the hydrogen, है ना। क्या बन रहा है, जब आयरन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो ये बना रहा है फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब हमें सेम चीज करनी है और हमें देखना है कि ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस है या नहीं है। तो देखिए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, क्या करेंगे हम, सबसे पहले ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड द फॉर्मूला। सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला है उसके आसपास बॉक्सेस बना देना है ना। सो ड्रॉ द बॉक्सेस फर्स्ट अराउंड द फॉर्मूला। तो देखिए बॉक्सेस बना दिए हैं। सेकेंड स्टेप इज ड्रॉ द टेबल। वैसे ही टेबल बना लेंगे जैसे अभी हमने ऊपर सीखी थी। सबसे पहले एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, देन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो देखिए कितने रिएक्टेंट्स हैं, काउंट करिए। आयरन इज 1, हाइड्रोजन इज 2nd एंड ऑक्सीजन इज 3rd। एक बार प्रोडक्ट्स में भी चेक कर लेते हैं। आयरन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मींस देयर आर 3 एलिमेंट्स इन द रिएक्शन, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम इनके एटम्स को काउंट करेंगे। सो काउंट द एटम्स ऑफ द आयरन फर्स्ट। कितने एटम्स हैं एज अ रिएक्टेंट, देयर इज 1 एटम। तो हमने जो टेबल बनाई उसमें हम जहां पे रिएक्टेंट्स का कॉलम है वहां पे लिखेंगे 1। नाउ काउंट द हाइड्रोजन, देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एज रिएक्टेंट एंड देयर इज 1 ऑक्सीजन एज रिएक्टेंट। अब हमें प्रोडक्ट्स की बात करें तो देखिए आयरन जो है ये कितने हैं, देयर आर 3 एटम्स ऑफ आयरन एज प्रोडक्ट, there are 4 atoms of oxygen as a product and there are 2 atoms of hydrogen as product। देखिए यहाँ पे Fe था, यहाँ Fe3 है। Fe है मींस 1 है, Fe3 है मींस 3 है, H2 है मींस 2 है, H2 है मींस 2 है। ऑक्सीजन को देखिए H2O में ऑक्सीजन O है मींस 1 है, जबकि Fe3O4 में ऑक्सीजन कितना है, 4। तो देखिए आपको देख के ही समझ आ रहा है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस नहीं है। तो अब हम 1 बाय 1 जो है एक एक एलिमेंट को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं Fe को। देखिए सबसे पहले Fe को लेंगे तो Fe में आप देखिए देयर इज 1 Fe, देयर इज 1 आयरन एज रिएक्टेंट, जबकि प्रोडक्ट्स में कितने हैं, 3 हैं, है ना। तो हमें क्या कर सकते हैं कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी कितने हो जाएंगे, 3। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है, लेकिन अब ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो हम इस पूरे के पूरे रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, देखिए उसका भी रूल है। इफ it is often convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms. It may be reactant or may be the product. हमें सबसे पहले उस कंपाउंड के साथ स्टार्ट करना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो रिएक्टेंट हो। So in that compound select the element which has the maximum number of atoms. अब उसमें भी हमें
वो एलिमेंट को चूज करना है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के उस एलिमेंट को चूज करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। तो अगर हम इस क्राइटेरिया को देखें तो Fe3O4 जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं वो किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। इसलिए सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, ऑक्सीजन को। सो देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड, मींस प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है, 4, जबकि लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन है, 1। तो देखिए कैसे बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स, सबसे पहले लिखिए एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, देन इन रिएक्टेंट्स और इन प्रोडक्ट। इनिशियली रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन थे, एज H2O 1, जबकि प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है, एज Fe3O4 4, है ना। जब रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो H2O के फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी और वो भी कितने एटम्स थे, 1। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में Fe3O4 के फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं। तो हमें दिख रहा है कि जो ये 1 है हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4 में। सो फॉर दैट वी मल्टीप्लाई 1 विथ 4, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 4, है ना। तो देखिए क्या लिखा है, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड that we cannot alter the formula of the compound or element involved in the reaction। ऐसा नहीं है कि आप क्या करोगे, बैलेंस करनी है इक्वेशन तो आप फॉर्मूला ही बदल दो, नहीं, है ना। हमें क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करना है। हमें जो प्रोडक्ट बने वो हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। अगर आप फॉर्मूला चेंज कर दोगे तो पूरा रिएक्शन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी पुट कोफिशिएंट 4 कहां पर, और H2O के सामने, है ना। तो हम इसके सामने 4H2O लिखेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते H2O4 और H2O होल 4। अगर हम इस तरीके से लिख देंगे तो वाटर नहीं बन रहा है, ये कुछ और ही कंपाउंड्स बन रहे हैं। H2O बन रहा है रिएक्शन में और H2O का फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है H2O। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिख दोगे H2 और O को के साथ आप 4 लिख दोगे तो ये कुछ और ही बन जाएगा। H2O होल 4 लिख दोगे तो ये कुछ और ही बन जाएगा, कोई दूसरा ही कंपाउंड है, ये वाटर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट्स हमने बनाए थे, हम जो 4 कोफिशिएंट है वो किसके सामने लिखेंगे, H2O के सामने, है ना। तो देखिए अब Fe और हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अभी भी हमारे बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन हमने जब 4 लिखा तो कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन अब हाइड्रोजन को देखिए, 4 इंटू 2 कितने हो गए हैं, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 8, लेकिन प्रोडक्ट में देखिए कितने हाइड्रोजन है, 2। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं वहां पर हमें कितने ऑक्सीजन की जरूरत, कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 4 की, क्योंकि हमारे रिएक्टेंट्स में तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 इंटू 2 8, है ना। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है लेकिन हाइड्रोजन अब डिसबैलेंस हो गए, तो ये हाइड्रोजन को अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस करेंगे। इनिशियली हाइड्रोजन कितने थे, 8 थे, कहां पर, एज रिएक्टेंट 4H2O। प्रोडक्ट्स में देखिए कितने हैं, 2, एज H2 के फॉर्म में कितने हैं, 2, है ना। अब बैलेंस करना है तो रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन है 8, लेकिन प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन है 2, तो 2 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 8। तो देखिए सेम 4 कोफिशिएंट हम अब किसके बाहर लिख देंगे, ये जो ब्रैकेट है हाइड्रोजन का प्रोडक्ट में उसके बाहर हमने क्या लिख दिया है, 4, है ना। तो जैसे हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया था, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया था, अब हमारा लास्ट बचा है Fe आयरन। तो देखिए Fe को अब हम कैसे बैलेंस करेंगे, है ना। देखिए अब हमें एग्जामिन करना है Fe। तो इनिशियली Fe रिएक्टेंट में कितना है, एज Fe1, देयर इज 1 एटम ऑफ आयरन एज रिएक्टेंट। लेकिन Fe3O4 जो कि प्रोडक्ट बना है, इस फॉर्म में कितने आयरन है, देयर आर 3 एटम्स ऑफ आयरन, है ना। तो दिख रहा है कि अभी आयरन हमारा बैलेंस नहीं हुआ है। तो देखिए आयरन को बैलेंस करने के लिए जो रिएक्टेंट है
उसको हमें किस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो हमारा रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो देखिए अब प्रोडक्ट में भी 3 आयरन है और रिएक्टेंट में भी 3 आयरन है। तो अब हम ये जो 3 है इसको कहाँ लिख देंगे, जो आयरन का ब्रैकेट है उसके बाहर। अब फाइनली हम रिएक्शन को चेक करेंगे कि हमारा रिएक्शन जो है वो बैलेंस रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो एटम्स हैं हम उन्हें काउंट करेंगे। तो देखिए अब इन ब्रैकेट्स को हटा दीजिए और सिंपली इस इक्वेशन को लिख लीजिए। तो देखिए 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। अब आप इसको क्या करिए, काउंट करिए। देखिए रिएक्टेंट में कितने Fe हैं, 3। प्रोडक्ट्स में कितने Fe हैं, 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 into 2 8। हाइड्रोजन कितने हैं प्रोडक्ट में, 4 into 2 8। ऑक्सीजन कितना है, 4। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, 4। तो ये जो मेथड थी इससे हमने हमारा जो केमिकल रिएक्शन था उसको क्या कर लिया है, बैलेंस कर लिया है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेथड, इट इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। ये कौन सी मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। अब ये जो मेथड है इसी के थ्रू हमें सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं इस चैप्टर में बैलेंस करके देखने हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज राइटिंग द सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट। जो भी एलिमेंट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके सामने ब्रैकेट में हम उनकी फिजिकल स्टेट लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द लेसन में पढ़ा था कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसकी स्टेट, उसका कलर, टेम्परेचर, कलर, ये सब क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो देखिए जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया तो Fe जो आयरन था वो हमारा किस फॉर्म में था, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट। तो देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, Fe के सामने S, इट डिनोट्स सॉलिड। H2O के सामने लिखा है गैस, है ना। ये जो H2O है ये किस फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेपर, है ना। Fe3O4 के सामने लिखा है S, किस फॉर्म में है, सॉलिड। जबकि 4H2O हाइड्रोजन जो है वो इवॉल्व हो जाएगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ये किस फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, है ना। तो देखिए द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशंस G, small g for gas, L is for liquid, AQ is for aqueous, है ना। एक्वस मतलब जब भी कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सोल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट हो इन वाटर, है ना, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, AQ एक्वस, एंड S इज फॉर सॉलिड। तो देखिए अब हमने पूरा का पूरा रिएक्शन जो है वो लिख लिया है ना। 3Fe 4H2O Fe3O4 plus 4H2, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारा क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। अच्छा ये जो गैस के फॉर्म में लिखा है, जनरली हम लोग जब H2O की बात करते हैं तो हम सोचते हैं ये क्या होगा, लिक्विड स्टेट। लेकिन जब हम G सिंबल यूज करते हैं H2O के सामने तो ये बता रहा है कि जो H2O है वो किस फॉर्म में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, वेपर के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन जो है आज यहाँ पर खत्म हो गई है। चलिए अब हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, द एग्जांपल ऑफ द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर एंड इट फॉर्म्स मिथेनॉल, है ना। ये क्या बना रहा है, मिथेनॉल। कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बना रहा है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को देखें, 6CO2 combines with 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, which is also known as green pigment. It forms glucose, C6H12O6, which is in the aqueous state, 6O2, which is also in the aqueous state, and 6H2O, which is present as liquid, है ना। तो हमें अब पता पड़ गया है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर या किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। What are catalyst? अगर हम सिंपली कैटलिस्ट को समझें, so catalyst initiates the reaction or it will enhance or it will decrease the rate of the reaction. ये आप पढ़ेंगे, है ना, कि कैटलिस्ट भी पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन
जो है उसके रेट को बढ़ा देते हैं, जबकि जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन को कम कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं। सो इन द नेक्स्ट लेसन अब हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ केमिकल reactions. Okay, so this is all for today. Thank you very much.